سا دن گزارا ہے قسم سے فارحہ، بیشک تاج سے بیگ تک، ایاک چوکر سے سمندر پار تک، صرف استنبول ہی نہیں، ہاں ہر گلی میں سوگواران کھڑے تھے۔ وہ سب اتنا روئے، سیلے اشک آ گیا، سیلے اشک۔ ملکہ نے جو کار خیر انجام دی، خدا ان کو انہیں اجر دے انشاءاللہ۔ کچھ ملعون بھی تھے جو یہ یقین کرنے آئے تھے کہ ملکہ کی موت واقع ہو گئی ہے۔ وہ بھی حق پر ہیں آقا، ملکہ کی دنیا سے رحلت پر یقین کرنا اتنا آسان نہیں ہے۔ ٹھیک کہا۔ حرم کی صورتحال کیسی ہے فارحہ؟ کیا حلوہ تیار ہو گیا؟ سب لوگ اپنے کام میں مصروف ہیں، فکر نہ کریں۔ فارحہ، ملکہ کو ان کی انگشتری سمیت دفن کیے جانے پہ کسی نے واویلا تو نہیں کیا؟ کیسی انگشتری؟ اوہو، حرم سلطان کی انگشتری کا کہہ رہا ہوں۔ انہوں نے خاص طور پر اس سمیت دفن کرنے کی وصیت کی تھی۔ غسل کے دوران میں سب سے آخر میں گئی تھی، لیکن مرحومہ کی انگلی میں کوئی انگشتری نہیں دیکھی۔ ارے میرے خدا، کسی نے نکال لی ہوگی شاید۔ اوہ، خاص طور سے ہدایت کی تھی میں نے، خاتون میں سے کسی نے نہ اتار لی ہو۔ یا اللہ رحم فرما۔ مطلب کہ شہنشاہ سلطان سلیمان نے ہیرا تراش کر خود بنائی، حرم سلطان نے انہیں عاشق نہیں بنایا، جادو کیا ہوگا، آشکار ہے۔ اگر وہ ان سے عشق نہ کرتے تو حرم سلطان کو والدہ سلطان بننے سے پہلے ہی جامع سلیمانی میں دفن کرنے کی اجازت نہ دیتے۔ محبت کی نہیں، اصل اہمیت محبت کرنے والے کی ہے۔ میں بھی مرحومہ والدہ سلطان کے راستے پر ہی چل رہی ہوں۔ آج کے بعد میرا راستہ وہی ہوگا، یہ انگشتری، اور اس کا مقام میرا ہوگا۔ یہ انگشتری حرم سلطان نے نہیں دی آپ کو۔ اللہ میرے گناہ معاف فرمائے، میں چرا کر لائی ہوں اسے۔ خدا کا واسطہ ہے آپ اسے چھپا لیجئے، کسی نے دیکھ لیا یا سن لیا تو قسم سے ہمارے سر قلم ہو جائیں گے۔ اب یہ انگشتری کسی کو نہیں دوں گی، حقدار تک پہنچ گئی۔ کس نے لی ہے خاتون، مجھے بتاؤ نا۔ آپ کیا کہہ رہے ہیں آغا؟ کیسی انگشتری؟ ایسی حرکت جائز نہیں ہے۔ اگر میں دیکھتی تو فارحہ کالفہ کے حوالے نہیں کر دیتی؟ خاتون، حرم سلطان کی آخری وصیت تھی یہ، کیا ان کی آخری خواہش کی توہین کریں گے ہم؟ تم نے تو نہیں لی وہ انگشتری؟ توبہ استغفر اللہ سنبل آغا، غسل دینے والی سے ایسی بات کریں گے؟ اپنے الفاظ واپس لیجئے۔ میں غصے میں نہ جانے کیا کچھ کہہ گیا خاتون۔ بتاؤ پھر کس نے لی ہے؟ وہ اڑ کر تو نہیں گئی ہوگی، کسی نے تو لی ہوگی ضرور۔ میں جب آئی تھی تب نہال خاتون اور اسما خاتون وہاں تھی۔ قسم سے ان خواتین پر مجھے پورا اعتماد ہے، وہ ہرگز ایسا گناہ نہیں کر سکتی۔ اللہ اللہ، تو پھر کون لے جا سکتا ہے؟ جلدی بتاؤ مجھے، وہاں پر کوئی اور بھی آیا تھا کیا خاتون؟ گناہ سر لینا نہیں چاہتی، لیکن جاں فدا خاتون کچھ دیر کے لیے آئی تھی وہاں۔ میں فاتحہ پڑھنے آئی ہوں یہ کہہ کر کچھ دیر میں ہی غائب ہو گئی۔ کہاں لے جا رہے ہو؟ چھوڑو۔ وہ انگشتری کہاں ہے خاتون؟ انگشتری؟ کیسی انگشتری فارحہ کالفہ؟ سنبل آغا قسم سے مجھے کسی بات کی خبر نہیں۔ چپ کرو، اپنی معمولی سی عقل سے مجھے دھوکہ دینے کی بالکل بھی کوشش نہ کرو خاتون۔ دعا کرنے کے لیے غسل کے دوران گئی تھی اور وہاں جا کر حرم سلطان کی انگلی سے ان کی انگشتری چرا لی تم نے۔ قسم سے مجھے کسی انگشتری کی خبر نہیں ہے، جھوٹ بولوں تو مجھے بہت آتا ہے۔ گھبراؤ مت، ایسا بھی ہوگا۔ اگر تم ہم سے نہیں ڈرتی تو کم از کم اللہ سے تو ڈرو، قسم سے عذاب نازل ہوگا تم پر۔ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ شہزادی، تم دونوں کس جرت سے میری خدمت گزار کالفہ سے تفتیش کر رہے ہو؟ آپ کی اس کالفہ ملعون نے غسل کے دوران حرم سلطان کی انگشتری چرائی ہے۔ میرا خیال ہے کہ اس واقعے کی آپ کو بھی خبر ہے، بلکہ ایسا کرنے کا حکم بھی آپ ہی نے دیا ہوگا۔ تمہارے روبرو شہزادے کے کنیز خاص اور شہزادے مراد کی والدہ موجود ہے، تم مجھ پر کس طرح الزام لگا سکتے ہو؟ شہزادی، صورتحال سنگین ہے، اس انگشتری کے لیے حرم سلطان نے وصیت کی تھی۔ اگر ایسا ہے تو اسے تلاش کرو سنبل آغا، تمہارا کام کیا ہے؟ شکر کرو ہر کوئی سوگ میں ہے، ورنہ وہ حشر کرتی کہ تم یاد رکھتے۔ تم سے بھی بات کروں گی فارحہ، تمہاری حفاظت کرنے والی حرم سلطان بھی اب نہیں رہی۔
طرح مشکل نہیں ہو جائے گی گلفام خاتون؟ ان بہروں اور گونگوں کو کس زبان میں سمجھائیں گے؟ یہ گونگے ضرور ہیں خاتون، لیکن بہرے نہیں. یہ بات سن سکتے ہیں لیکن بات نہیں کر سکتے. سلطان معظم اب ذرا سی بھی آواز سننے کی سکت نہیں رکھتے. گلفام خاتون، سلطان معظم کا فرمان شاہی ہے، فوراً محل بھر میں اسے پڑھ کر سنا دیا جائے. جو ضروری اقدامات ہیں وہ کیے جائیں. سلطان معظم کا فرمان شاہی ہے یہ. حرم ہمایوں میں آج کے بعد شور و شغب اور غوغا نہیں مچے گا، کہکے نہیں گونجیں گے. کسی بھی طرح کا جشن منانے کی حرم ہمایوں میں بالکل اجازت نہیں ہوگی. آج کے بعد اس حرم میں مطلق خاموشی ہوگی. سونے کے، چاندی کے اور ریشم کے بغیر زندگی بسر کی جائے گی. اصول کی پابندی نہ کرنے والے کو سخت سے سخت ترین سزا دی جائے گی. کل شب میں ستارے گن رہی تھی جان فدا. ہر ایک علامت کے 2 معنی تھے. اچھے کون سے تھے اور برے کون سے مجھے نہیں معلوم. ایسی علامتوں کے معنی بتانے والی یہی خاتون ہے شہزادی. اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کا ہر لفظ مبنی بر صداقت ہوتا ہے. خاتون کے صحیح ہونے کی وجہ سے حورم سلطان بھی خود چل کر اس کے پاس آئی تھی. حورم سلطان کو یقیناً کچھ معلوم ہوگا. تشریف لے آئیے اندر. خوش آمدید شہزادی. آپ کو انتظار کرنا پڑا، اس کے لیے معذرت. اگر خوشخبری سناؤ گی تو معاف کر دوں گی. میں مذاق کر رہی تھی. حورم سلطان بہت مداح تھی تمہاری. اللہ ان کی مغفرت کرے. آمین. تم نے آخری بار حرم سلطان کو کیا بتایا تھا؟ میں وہ جاننے آئی ہوں تم سے. حقیقت. وہ حقیقت کیا ہے مجھے بھی بتاؤ. دیکھ رہی ہوں شہزادی. ملکہ کی وفات کے بعد وہ جلد ہی آنے والی ہے. یہ بربادی کی علامت ہے. اس فتنے میں کون سلامت رہے گا یہ بتاؤ مجھے. جو کچھ دیکھ رہی ہو بتاؤ. ایک شیر دکھائی دے رہا ہے، شاہین جیسے پر رکھنے والا شیر، اور اس کے سر پر ایک تاج ہے. شیر جو شاہین جیسے پر رکھتا ہے، یہ میرے وطن میں قدیم علامت ہے. جہاں سے میں آئی ہوں یہ وہاں کی علامت ہے. اس خاندان کا نام شیر اور شاہین کی علامت سے جاری رہے گا، اور وہ شہزادی تخت کا اگلا جانشین شہزادہ
पहले ही पैदा कर चुकी है। रोशन मुस्तकबिल शहजादे सलीम का ही होगा। मेरा सितारा भी रोशन होगा इंशाल्लाह शहजादी। खातून ने धुएं में वेनेडिक की शाहीन जैसे शेर की अलामत में आपको देखा था। हाँ बिल्कुल। वो जाहिल औरत क्या जाने वेनेडिक की शेर की अलामत आखिर क्या है। ये कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है ये? क्या वो शहजादी? डेफने भी वेनेडिक की है। ये मैं कैसे भूल गई? अगर उस खातून ने इसके बारे में बताया है तो? ओ मेरे खुदा। बहुत सुकून से सो रहा है मेरा बिस्र। बच्चों के मासूम चेहरे ही मौत जैसा गम भुलाने में मददगार होते हैं। कई दिनों से बेआराम हैं आप। कुछ देर तो आराम कर लीजिए। नींद मुझ पर हराम है अब डेफने। सलीम आराम से नहीं बैठ रहा, फिर से घनाउनी साजिशों में मसरूफ है। नूरबानो का भी यही हाल है। जनाजे वाले दिन उसके मुंह से निकली बात अगर सुन लेते तो खुरम सुल्तान की मौत से शहजादे अब तन्हा रह गए हैं, ये कह रही थी। बिल्कुल सलीम जैसी फितरत रखने वाली कनीज है वो। मैं किस शय से खौफजदा हूं यह मालूम है तुम्हें डेफने? सलीम पहली फुर्सत में हमला करेगा और मैं वालिदा से किया हुआ वादा तोड़ दूंगा। जब असल मामला अपनी औलाद की जिंदगी का हो तो कौन शख्स अपने वादे पर कायम रह सकता है? आपके 5 पिसरान हैं बेअज़त। अगर आपने तरद्दुद से काम लिया और अपने ज़मीर की बात अगर मानते रहे तो वो आपकी औलाद को तहत-ए-यक़ कर देंगे। मैं एक औरत के पास गई थी। वो फाल देखने के लिए बहुत मशहूर है। उसने ऐसी बातें बताई हैं मुझे। धोखेबाज होगी, उसकी बातों में ना आना। इसका इम्कान नहीं। अगर वैसा होता तो मरहूमा वालिदा उसके पास चलकर खुद नहीं जाती और ना ही उसकी बात पर एतबार करती। औरत के पास गई थी। वो फाल देखने के लिए बहुत मशहूर है। उसने ऐसी बातें बताई हैं मुझे। धोखेबाज होगी, उसकी बातों में ना आना। इसका इम्कान नहीं। अगर वैसा होता तो मरहूमा वालिदा उसके पास चलकर खुद नहीं जाती और ना ही उसकी बात पर एतबार करती। उसकी पेशगोइयां दुरुस्त साबित होती हैं। खुरम सुल्तान की बीमारी ही नहीं बल्कि उनकी मौत का भी इल्म था इससे। मुझे बहुत सी अहम चीजें बताई हैं इसने। काफी है बस। शहजादों में से एक के तख्तनशीन होने से पहले दूसरा कब्र में जा चुका होगा, ये बताया। इस खानदान का नाम वेनेडिक की खातून से जारी रहेगा। फिर तो वो तुम हो। मैंने भी यही सोचा था, लेकिन शहजादे बयाज़त की कनीज़े खास डेफने खातून भी वेनेडिक की है। वो भी शहजादे की माँ है। मैं यही सोच सोच के परेशान हो रही हूँ। उस खातून को मैंने खुद वहां भिजवाया था। अब कोई रास्ता नहीं है शहजादे। अगर आपके दिल में शहजादे बयाज़त के लिए कोई भी नरम गोशा है तो उसे निकाल फेंकिए। आका का सो खत्म होते ही उन्हें ये मालूम हो जाना चाहिए कि शहजादे बयाज़त ने खुद वो संदूक आपको भिजवाया था।
रुस्तम पाशा के अब तक नहीं आए? जी नहीं आई शहजादी। शहजादी, किस बात आप इतना परेशान हैं? कोई खास बात नहीं। शहजादी मुझे बता दीजिए, अगर खास बात नहीं होती तो आप हरगिज इतना परेशान न होती। बता दीजिए शहजादी, आपकी वालिदा का हमराज रहा हूं मैं जिस तरह, उसी तरह आपके राज और आपके दुख में शरीक होने के लिए हाजिर हूं। रुस्तम पाशा के मुतालिक कोई बात है क्या शहजादी? मैं किस तरह बताऊं सुंबुल, मुझे नहीं मालूम। रुस्तम को उसी खातून सीनियर मेंदेस से कोई ताल्लुक है। इसका कतन कोई एहतमाल नहीं शहजादी। रुस्तम पाशा को आपसे जो उनसियत है उसके बारे में हर कोई जानता है। सुंबुल, मैं औरत होने के नाते महसूस कर रही हूँ दिन ब दिन मुझसे दूर होता जा रहा है। वो आपसे हरगिज दूर नहीं रह सकते शहजादी। शहजादे सलीम के पास शहजादे बेआज़त की जानिब से भेजा हुआ एक संदूक है। अगर सुल्तान सुलेमान ने उसे देख लिया तो शहजादे बेआज़त को उनके अताब से कोई नहीं बचा सकता। मेहरमा, उम्मीद है कोई परेशानी नहीं होगी तुम्हें। इतने दिनों के बाद आपसे यूं मुलाकात हो गई, अब मुझे कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन मेरी खुशी अधूरी रह गई। वालिदा भी अगर जिंदा होती तो इसे देखकर खुशी से निहाल हो जाती। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। हय्या अलस सलाह, हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह, हय्या अलल फलाह। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। तुम्हारा नाम उस्मान है, तुम्हारा नाम उस्मान है, तुम्हारा नाम उस्मान है। मेरा बेटा। अल्लाह अपनी रहमतों और नेमतों में हरगिज कमी न करना। अल्लाह इसे सेहतमंद रखे। आमीन। अल्लाह इसका बख्त रोशन करे। आमीन। अल्लाह इसे सल्तनत आलिया बख्शे। आमीन। मेरे आका, शहजादी, अभी तो बहुत वक्त था, हमारा पिसर जल्दी आ गया। उस्मान, आखिर मैं भी पिसर का वालिद बन गया। बच्चे की विलादत के वक्त तो मेरे पास नहीं थे रुस्तम। मैं ये बात कभी नहीं भूलूंगी। उसी के पास गए थे ना तुम? किसकी बात कर रही हो? यकीन करो मुझे नहीं मालूम। हर चीज का एहसास है मुझे बेवकूफ मत समझो। उस खातून से कई बार मुलाकात कर चुके हो तुम। वो यहाँ जिस वक्त आई थी तब से उसके साथ तुम्हारी उनसे ताशकार थी। मेरे बजाय तुम उसे फौकियत देते रहे, बखूबी जानती हूं मैं।
तुम कुछ भी तो नहीं जानती। मुझे इस हाल तक पहुंचाने वाली दरअसल तुम ही हो महरमा। बरसों तक तुम्हारी मोहब्बत से महरूम रहा मैं। तुमने हर मर्तबा मुझसे हिकारत आमेज सलूक किया है। अब किस बात का हिसाब मांग रही हो? आओ। पाशा, शहजादे बयाज़त मोहतरम तशरीफ लाए हैं। खैर तो है? कुछ देर पहले ही तो गया था वो। मैंने बुलाया है उन्हें। आओ। शहजादे, आखिर महल वापस आ गए? देख लिया अपने पिसर को? जी देख लिया शहजादे। उसकी पैदाइश की इत्तला मुझे देर से मिली। मैं उमूर सल्तनत में मसरूफ था। औलाद हर चीज से अहम होती है रुस्तम। तुमसे कहा था लापरवाही नहीं बरतोगे। एक अहम मसला आ पड़ा है। शहजादा सलीम के पास आपका भेजा हुआ संदूक है, मुझे मालूम हुआ है, जो कि आपके और आका के ताल्लुकात खराब कर सकता है। क्या ये दुरुस्त है? तुम्हें किस तरह मालूम हुआ? माफ कीजिए शहजादे, ये बात दुरुस्त है या नहीं? दुरुस्त है लेकिन अधूरी बात है। शहजादे सलीम ने अगर मुझ पर इल्जाम लगाया तो अपने लिए भी मुसीबत मोल लेगा। मैं तफसील जानना चाहता हूं, लेकिन इस वक्त इजाजत दें। आगा, फौरन लाला मुस्तफा को खबर भेजो कि यहां आए। शहंशाह, ये इश्क है जंग है, शहंशाह, ये इश्क है जंग है, दुनिया जाने। सुल्तान मौसम तक ये संदूक अब तक पहुंच जाना चाहिए था। आका जनाजे के बाद आज पहली बार महल से बाहर गए हैं। उनका शोक खत्म हो गया ये कहना मुमकिन नहीं है। मैं जानता हूं कि वालिदा का सदमा जिंदगी भर उनके साथ रहेगा। कुछ दिन और इंतजार करना होगा। जैसे आपकी मर्जी। उजलत बरतने की कोई जरूरत नहीं है। किस्मत मेरे साथ है नूरबानो। सल्तनत की अहम शख्सियात आपके साथ हैं, लेकिन रुस्तम पाशा वो अभी तक शहजादे बयाज़त की तरफदार हैं। कौन जाने अनकरीब ही शायद वो भी अपना फैसला बदल दें। ये देखो जरा, ये बहुत खूबसूरत है। ये मुझे दो। नहीं, मैं नहीं दूंगी तुम्हें। छोटी शहजादियों, क्या कोई नहीं आपके पास यहाँ? हर तरफ चीजें बिखरी हुई हैं आप लोगों की। ये अंगुश्तरी खुर्रम सुल्तान की अंगुश्तरी है। ये कहाँ से मिली आपको? शहजादियों का ख्याल रखो। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मेरे कमरे से दूर रहो, कहा था ना मैंने तुम्हें फारिहा। क्या छुपा रही हो तुम? छुपाने वाली मैं नहीं हूँ। ये आपके पास थी, मुझे पूरा यकीन था। शहजादे को इसका हिसाब बहर सूरत देना होगा आपको। क्या होश हवास खो बैठी हो? मेरी शिकायत की जुर्रत करोगी तुम? तुम्हारे रूबरू एक शहजादी है। ये अंगुश्तरी दो मुझे फौरन। ये आपकी नहीं है, ये मरहूम हुर्रम सुल्तान की अंगुश्तरी है।
मैं देखना चाहती हूँ कि शहजादे सलीम वालदा की अंगुष्ठी चोरी करने का सुनकर कैसा रद्द अमल जाहिर करेंगे। जी मेरे हवाले कर दो, मैंने कहा। छोड़ो मुझे। क्या हो रहा है यहाँ? फारिहा खातून हुर्रम सुल्तान की दी हुई अंगुष्ठी चुरा रही थी। हरगिज नहीं शहजादे, हुर्रम सुल्तान की अंगुष्ठी काफी दिनों से गायब थी। नूर बानो सुल्तान के जवाहरात से मिली है। मैं इसे आपके पास लेकर ही आ रही थी कि शहजादी ने मुझे रोक दिया। ये कैसी जुर्रत है खातून? तुम कौन होती हो मेरे तिफलान की वालिदा पर, एक शहजादी पर चोरी का इल्जाम लगाने वाली? शहजादे मुझे वजाहत। खामोश हो जाओ। गजनफर आगा इस खातून को जिंदान में डाल दो। एक शहजादी पर इल्जाम लगाने का बदला अपनी जान देकर चुकाएगी। बहस करने की जरूरत नहीं, ले जाओ इसे। मैं कसम खाती हूँ मैंने जो कुछ कहा वो सच है शहजादे, मैंने कुछ नहीं किया शहजादे। मैंने आपसे कहा था ना कि मेरी दुश्मन बनी हुई है वो। देखिए जरा कितना झूठ बोल रही थी। ये मुझे दो। वालिदा तुम्हें कभी अपने गुनाह भी नहीं देती, और फिर ये अंगुष्ठी। अफसोस, मैं अपने दिफा की कोशिश में मसरूफ हूं और तुम किन मामलात में उलझी हो। अपने तिफलान को दुआ दो, वरना तुम्हें इसका संगीन बदला चुकाना पड़ता। शहजादे सलीम ने जो कुछ मकतूब में तहरीर किया है, अगर वो सच है तो तूफान बहुत करीब है पाशा। दुआ करें कि सुल्तान मुअज्जम शहजादे बेअज़्ज़त की मौत का फरमान जारी न करें। खुदा ना करे। हम क्या इक़दाम करेंगे पाशा? क्या सोचा है इस बारे में? चाहे हम अपनी तलवार की धार तेज कर लें या कुछ भी कर लें, कोई फायदा नहीं। सुल्तान मुअज्जम की नजर में ना तुम्हारी कोई अहमियत है और ना ही मेरी। शहजादी, इजाजत चाहता हूं पाशा। क्या हो रहा है रुस्तम? बेआज़त के मुतालिक कोई अहम मसला दरपेश है। शहजादे बेआज़त को थाया छोड़ने पर तैयार नहीं, वहां रहकर सिपा जमा कर रहे हैं। लगता है कि बगावत पर आमादा है वो। सुल्तान मुअज्जम के गुस्से को सिर्फ तुम ही ठंडा कर सकती हो महरमा। उनके ख्यालात तब्दील करने वाली सिर्फ तुम हो। गलती कर रहे हो तुम लोग। छोड़ दो मुझे, छोड़ो। शोर मत मचाओ खातून, शहजादे सलीम का हुक्म हतमी है। ये जंजीर किस लिए? मैं कहाँ फरार हो सकती हूँ? गजनफर आगा ने तंबीह की है। उस खातून का भरोसा नहीं, उसे बांध कर रखना। आगा, रुको आगा। अगर मुझे यहाँ से निकाल दो तो तुम्हें बहुत सारा सोना दूंगी। सारी उम्र आराम से गुजारोगे तुम। आप तीनों शहजादे सलीम की दुख्तरान हैं। जो आपने किया क्या आपको ज़ेब देता है? अतराफ में हर चीज को फैला कर रख दिया आपने। किसने खोला था मेरा संदूक, बताइए। इन दोनों ने कहा था कि संदूक में देखो। अस्मा खान। माजरत चाहती हूँ वालिदा। मुझसे वादा करो आइंदा ऐसा नहीं करोगी तुम। वादा। मेरी अजीज दुख्तरान, आप तीनों महल की शहजादियां पैदा हुई हैं। ये बात हरगिज फरामोश ना कीजिएगा और हमेशा एक शहजादी की तरह रहेंगी। और एक दिन आएगा, इस महल पर आपका हुक्म चलेगा। हर कोई आपके सामने सर झुकाएगा। एक ही हुक्म पर कवायद नए सिरे से तरतीब दिए जाएंगे। आपकी एक ही निगाह से जमीन अपनी जगह से हिल जाएगी। सल्तनत आलिया की तमाम ताकतवर शख्सियात, सूबेदार आपके अतराफ परवानों की तरह घूमेंगे। मुझसे भी ज्यादा ताकतवर बनेंगी आप तीनों। ये सब कैसे होगा वालिदा? क्योंकि आप तीनों पैदाइशी शहजादियां हैं।
آپ کی رگوں میں اس خاندان کا خون ہے، یہ کبھی نہ بھولیے گا۔ ایک دن آئے گا آپ کے بابا اس سلطنت کے حکمران بنیں گے اور آپ تینوں ان کی طاقت میں، اقتدار میں ان کے ساتھ شریک ہو کر ان کی پوری طرح ہمسری کریں گے۔